Assalamu alaikum students, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss viruses. Okay, this is our lecture number 9, which is regarding viruses. So we will study viruses, and this is also a topic from journal virology, which is included in our course, like in course of microbiology. So we will discuss what are the viruses. So here you can see even a structure of virus as well. Okay, this is a journal structure of a virus. So you can see this one means once we usually visualize viruses in an electron microscope, we can observe viruses in such fashion or in such manner. This is a three-dimensional picture of viruses. Here you can see some of the spike proteins, okay, on the outer covering of the viruses, and there is an envelope, okay, and then there is a genetic makeup inside the we can say inside the virus, okay. So or inside the viral structure as well. Moving forward, means first question we usually or people usually ask from us, either viruses are living or not, or non-living, means viruses living hai ya non-living hai. Actually viruses act or behave as living as well as non-living bodies, okay, because once viruses get favorable place they start grow, but once viruses have no favorable place to grow, usually they are converted into the spores and they can reproduce later. So infectious particles hain and they contains nucleic acid and proteins, cannot live outside a host, mean viruses require a host for their we can say reproduction or survival as well. Sometimes viruses survive in the form of spores, so they usually convert themselves into the spores. Further history of viruses, so this is very important to discuss, means smallpox was endemic in China back in 100 before common era, okay, 100 BC means before Christ or before common era भी कहते हैं इसको. इसका मतलब ये कि आज से 1400 साल पहले, क्योंकि बिफोर कॉमन ईरा से मतलब होता है कि आज से 1400 साल पहले, तो 1400 साल पहले आज से पहले बात करें तो हम लोगों के पास जो चाइना था, बेसिकली चाइना में एक वायरस इमर्ज हुआ था, दैट वाज काजिंग अ स्मॉल पॉक्स डिजीज, ओके. इन रिस्पॉन्स टू द प्रैक्टिस ऑफ वायरोलेशन वाज डेवलप्ड. अब वायरोलेशन क्या है बेसिकली, कि वायरोलेशन में उन्होंने साइंटिस्ट ने लोगों ने एक ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट किया, मींस हाउ दे कैन कोप अप विद द वायरसेस एंड हाउ दे कैन मींस प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शंस, बिकॉज एट दैट टाइम survival of the people was very difficult. People were even killed at the more drastic rates in comparison to coronavirus as well. So in violation involved inhalation of dried crust from smallpox lion in later modification, like inoculation of the pus from a lion into a scratch on the forearm of the child. तो ये होता था बेसिकली कि जो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट होता था तो उसकी बॉडी पे जो पस एक्युमुलेट होती थी, और पस के अलावा जो उसकी बॉडी पे क्लस्टर्स बनते थे, ठीक है, तो क्लस्टर या जो ब्लिस्टर्स बनते थे, तो वहाँ से पस वगैरह निकाल के और किसी दूसरे इंडिविजुअल को वो वाली पस क्या किया जाता था कि कट लगाया जाता, फोर आर्म पे कट लगा के वो वाली पस एडमिनिस्टर की जाती थी, और फिर देखा जाता था कि कुछ लोग रिकवर हो जाते थे स्मॉल पॉक्स से. अब ये तो एक मॉडर्न दौर की, ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन मॉडर्न एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वाकई ये तो एक बेस है हम लोगों के पास वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो देख इस तरह से होता था कि जो एक इंडिविजुअल जो इन्फेक्ट होता था तो उसकी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ये जो उसका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती थी, तो वो एंटीबॉडीज़ जो कि स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट बनती थी, उन वायरसेस वो वाली एंटीबॉडीज़ या पस सेल्स जो है उसमें वो एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती थी, तो वो एंटीबॉडीज़ बेसिकली ट्रांसफ्यूज़ की जाती थी, तो जिससे एक पेशेंट कुछ चांसेस होते थे उसकी रिकवर करने के. सो दिस वाज एक्चुअली अ प्रैक्टिस विच वाज यूज्ड इन पास्ट बिफोर 1000 BC, मीन्स आज से 1400 साल पहले, ठीक है, उससे भी पहले. So this was actually a history of virology, and at that time scientists means started to study the viruses. तो viruses को scientists ने उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दिया, स्टडी करना स्टार्ट कर लिया. तो स्मॉल पॉक्स वायरस की अगर हम बात करें तो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट. तो स्मॉल पॉक्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली ये डीएनए वायरस है, ठीक है, तो डीएनए वायरस है और ये भी फेस टू फेस स्प्रेड करता है, और अगर दो इंडिविजुअल फेस टू फेस बात कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम, सो दिस इज एक्चुअली अ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट. पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट कैन इवन ट्रांसमिट द स्मॉल पॉक्स डिजीज एज वेल. और स्मॉल पॉक्स की ट्रांसमिशन के अलावा हम ये कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स की जो अभी उसकी एग्जिस्टेंस की बात करें, क्या स्मॉल पॉक्स अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो स्मॉल
स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट किया गया था, वर्ल्ड वाइड इसकी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से एरेडिकेट किया गया है। अभी सिर्फ स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है बेसिकली कुछ लैब्स में मौजूद है, बट दिस वायरस इज नॉट प्रेजेंट और कॉमन इन अ पब्लिक और इन अ पीपल एज वेल। So next, moving further, so another first virus discovered was tobacco mosaic virus TMV। टोबैको मोज़ेक वायरस एक्चुअली है क्या, ये क्या करता है कि टोबैको की जो क्रॉप होती है, क्योंकि पुराने ज़माने में ये होता था कि टोबैको की क्रॉप पे आपकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डिपेंड कर रही होती थी। तो इफ़ मीन्स योर टोबैको इज़ गेटिंग लॉस्ट ड्यू टू वायरल अटैक, वी कैन से यू विल बी हैविंग सम इकोनॉमिक लॉस। सो दैट्स वाई दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल और कॉमन पब्लिक, फॉर द ट्रेड एज वेल। दैट्स वाई पीपल स्टडीड टोबैको मोज़ेक वायरस इन डिटेल एज वेल। सो टीएमवी करता क्या है बेसिकली कि टीएमवी क्या करता है कि जो विल्टिंग होती है, मोज़ेक का मतलब होता है कि विल्ट होना, या जहाँ पे देखें जैसे लग रहा है कि ये वायरल अटैक है यहाँ पे, तो ये हेल्दी हम लोगों के पास लीव्स हैं टीएमवी के, टोबैको के, और ये टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस जो है टीएमवीएस ने इन्फेक्ट किया, और ये लीव्स इन्फेक्ट होते होते ये सारे लीव्स जल जाते हैं। तो एक्चुअली जो टीएमवी है ये प्लांट वायरसेस है, ठीक है। तो प्लांट वायरसेस कैन नॉट इन्फेक्ट ह्यूमंस एज वेल। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्लांट्स के वायरसेस होते हैं वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्लांट वायरसेस ह्यूमन को इन्फेक्ट करें, लेकिन ये क्रॉप्स को या प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब ये होता है कि अगर आपके पास जो है टोबैको की क्रॉप है, अगर आप ये वायरस से इन्फेक्टेड क्रॉप है और इसके ऊपर आप नॉर्मल या हेल्दी क्रॉप ऐड करते जाएंगे और उसकी बंडल्स बनाते जाएंगे, तो व्हाट विल बी हैपनिंग मींस देयर वुड बी चांसेस ऑफ द होल क्रॉप लॉस एज वेल, कि वो सारी क्रॉप जो है वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, और जिसकी वजह से फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्रॉप सारी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉस, TMV was also studied in detail and there were certain recommendation and prevention strategies were also recommended। और tobacco mosaic virus जो है ये single stranded RNA virus है, okay, and there are certain we can say therapeutic agents were developed to cope up with the virus। और इसको 1892 मीन्स 1892 में डिमिट्री एवानोसॉकी ने इसको डिस्कवर किया, और फिर मार्चन्स बिंजरिंग ने भी इसको डिस्कवर किया और स्टडी किया बैक इन 1898 में, ठीक है। तो ये काफ़ी पहले इस पे काम हो चुका है। Okay, moving further, virus infections are universal. This is even a question for you guys as well. Means why viral infections are universal. Virals can infect humans, okay? They can infect food, they can infect air, they can infect water, they can infect all the environmental constituents or components as well. That's why viruses are recognized as a universal infectious agents. They can infect all sorts of, we can say, environmental components around, starting from air, water and humans or populations as well. Viruses, the boundary of life. Why we recognize viruses as the boundary of life on the behalf of their size, means as you people know, at the boundary of life between the macromolecules which are not alive and the prokaryote cells which are in lie the viruses and bacteriophage। तो प्रोकैरियोट सेल्स की जो रेंज है, सेलुलर साइज की रेंज है, तो वायरसेस उसमें भी लाई करते हैं, जैसे नैनोमीटर्स की रेंज में वायरसेस लाई करेंगे। ओके, वायरसेस आर फाउंड एवरीवेयर। वायरसेस हर जगह पाए जाते हैं। वायरसेस कंसिस्ट ऑफ कोर न्यूक्लिक एसिड्स, आइदर डीएनए और आरएनए मौजूद होगा। प्रोटेक्टिव कोट होता है वायरसेस की जो आउटर कवरिंग होती है, और फिर उसमें कोट प्रोटीन्स का भी हो सकता है एंड समटाइम्स लिपिड्स का भी होता है, या प्रोटीन और लिपिड का लिपोप्रोटीन भी हो सकता है। सो दिस वन, इफ देयर आर लिपोप्रोटीन और लिपिड viruses, they are more dangerous rather than viruses which are protein in whose code is protein in nature. So we will discuss further. Introduction to virology means virus is an obligate. There are some general characteristics which we are going to study. Viruses are obligate intracellular parasites containing genetic material surrounded by protein. So इस तरह से हैं कि viruses जो हैं obligate intracellular means they are living inside the cell and they totally or absolutely use a cellular content of the host cell as well. Viruses particle can only be observed by an electron microscope. तो viruses का साइज बहुत छोटा है, नैनोमीटर्स की रेंज में होता है, तो हमें इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है viruses को विजुलाइज करने के लिए। तो वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट इस वजह से कहा जाता है कि बिकॉज वायरसेस अल्टीमेटली टोटली डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल्स एंड दे विल बी यूजिंग होस्ट सेलुलर और सिंथेटिक मशीनरी टू प्रिपेयर देयर own proteins or viral proteins. That's why sometimes they are known as intracellular parasites or obligate intracellular parasites as well. So moving forward,
इंट्रोडक्शन टू वायरोलॉजी, रिकग्नाइजिंग द शेप्स। वायरोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, वायरस की शेप स्टडी करते हैं, साइज, स्ट्रक्चर्स, और फिर उनकी टाइप्स भी देखी जाती हैं, और फिर डिजीज़ भी, जो व्हाट काइंड ऑफ मीन्स डिजीजेज वायरसेज आर लीडिंग। सो वायरसेज हैव एन इनर कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होता है, और जो बाहर होता है, जो वायरस का कोट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज इन्वेलप। मोस्ट वायरसेज रेंजेस साइज इन रेंज फ्रॉम 22 to 50 नैनोमीटर्स। तो 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक वायरल की जो साइज रेंज है ये है हम लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो मीन्स वायरसेस का जो एक इनर कोर होता है वो न्यूक्लिक एसिड से बना होगा। जैसे मैं सपोज ये एक वायरस ड्रा करता हूँ, तो इसका ये जो आउटर कवरिंग है ये तो प्रोटीन है, ठीक है, और ये जो इनर कवरिंग है, ये जो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज एक्चुअली अ डीएनए, ओके, और आरएनए। इट कुड बी डीएनए और आरएनए। दिस इज अ समहाउ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। सो stay tuned for part B of this lecture. Allah Hafiz.